Welcome to my maths class. Students, today we are going to start sums of exercise 12.3. The first question of exercise 12.3 is find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio 2:3 internally, and in the B part it is externally. So in this question you have been given 2 points. So this is first point x1, y1, z1 and x2, y2, z2. These are the 2 points. And you are given the ratio also, that is 2:3 internally. Now required point as per the section formula, that required point will be mx2 plus nx1 upon m plus 1, my2 plus ny1 upon m plus n, and then mz2 plus and z1 upon m plus n. We will put the values of x1, y1, z1 and x2, y2, z2 and m and n here in this formula, and we will get the required point with the help of the calculation that is given here. Now, if this point is lying somewhere outside, not internally, it lies on the line, it lies externally somewhere, then how we will find out that point? Only the difference will be there in this sign. You can see here now it will be minus sign. All other things will remain same. We'll put the same values of x1, y1, z1 and x2, y2, z2 and m and n also, but here there will be negative sign in between, and after this calculation this is the point -8, 17 and 3. Now come to the question number 2. In this question, we have been given that a point that there are 3 points, P, Q, and R, and we are to check. We are given that these 3 points are collinear. Then we are to find the ratio in which the point Q is dividing PR. Look here, I've taken all these 3 points on a single line because it is already given that these 3 points are collinear. Now we are to find out the ratio. If we are to find out the ratio, I suppose that I'm taking it, I'm assuming that ratio is k:1. M is your k and n is your 1. Okay. Now by applying the section formula here, this point, if I consider this is x1, y1 and z1, and this is x2, y2 and z2, and this point is x, y, z, then applying it all by substituting all these value in this formula, and m is k and n is 1, by substituting all the values of all these x1, y1, z1, x2, y2, z2 and x3, y, sorry, x, y, z and m and here in this section formula, we'll get the value by, look here, you can compare either the value of this x coordinate or of the y coordinate or of the z coordinate. We will get the same value of k here. So only calculation part is here. So you can do it complete yourself. It's very easy, and ultimately you can see k, value of k is 1/2, means Q is dividing PR in the ratio. What is the ratio? That is 1:2. Hence it is done. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है मिस आपके 12.3 एक्सरसाइज का वो है कि फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. तो आपके ये 2 पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है. इनको ज्वाइन करके ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसको आपका जब YZ एक्सिस कट करता है वो पॉइंट P पर कट करता है, क्योंकि YZ एक्सिस है वो, तो उस YZ एक्सिस का कॉमन पॉइंट है ये P इस AB लाइन सेगमेंट के साथ. तो YZ का जो पॉइंट होता है वो, एज आई टोल्ड यू, कि एनी पॉइंट ऑन द YZ एक्सिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0, y, z. उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है YZ एक्सिस पर, ठीक है. तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो YZ, अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर Y और Z आपका प्लेन बनेगा, ठीक है. और ये हमने सपोज किया कि ये इसको AB को k:1 रेशो में डिवाइड करता है. तो आप सेक्शन फॉर्मूला से कर लीजिए, k को मल्टीप्लाई करेंगे आप इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, ठीक है. तो ये आपका x1, y1, z1 है, ये आपका x2, y2, z2 है, और ये आपका m है, ये आपका n है. By applying it in the section formula mx2 plus n x1 upon m plus n,
ठीक है, ऐसे y और z कोऑर्डिनेट के लिए, तो दैट इज इक्वल टू 0, y, z। अब आप अल्टीमेटली देखिए आपके पास जो इसमें x कोऑर्डिनेट है, द वैल्यू ऑफ द x कोऑर्डिनेट वी नो दैट इज 0। आप उसको इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आई, 2/3। अब k की वैल्यू आपके पास 2/3 आ गई, यानी रेशियो हमारे पास आ गई 2:3। अगर इसका y और z कोऑर्डिनेट भी निकालना है तो k की वैल्यू ये 2/3 यहाँ पर भी पुट कर दीजिए, y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और यहाँ भी पुट कर दीजिए तो z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, by using the section formula you are to show that these three given points are collinear। देखिए अभी तक जो 10th क्लास में अगर हमें whatever we have studied so far up to 10th class, तो उसमें क्या था, if we had been given 3 points and we have to check if, then how do we check that these 3 points are collinear, या तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, और if the area of the triangle comes out 0 then we say that these 3 points are collinear। okay, दूसरा मेथड क्या होता था, दूसरा था सेक्शन सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते थे, तीनों साइड्स निकालते थे ट्रायंगल की, ए बी, बी सी एंड ए सी, एंड इफ द सम ऑफ एनी टू साइड्स कम्स आउट इक्वल टू द third side, then we say that it's not means it means it these given 3 points are collinear। लेकिन अब यहाँ पर बोला है कि उनमें से नहीं कोई भी यूज करना, आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। अब सेक्शन फॉर्मूला ये हमने यूज करना है, शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि मान लिया कि ये जो पॉइंट बी है वो ए सी को k:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और फिर क्या हम करते थे कि फर्स्ट कोई भी एक कोऑर्डिनेट लेते थे, यहाँ से लेंगे, ठीक है, और उसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, k इंटू मल्टीप्लाई विद दिस 0 प्लस 1 into multiply with this x coordinate 2 upon k plus 1 is equal to this minus 1। इससे k की वैल्यू निकालो, ऐसे y के लिए निकालो, ऐसे z के लिए निकालो, अगर तीनों में k की वैल्यू सेम आएगी then we say that these 3 points are collinear। लेकिन अगर आपकी k की वैल्यू तीनों के लिए सेम नहीं है then these 3 points are not collinear। अच्छा, एक और तरीका भी है इसको करने का कि आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट x कोऑर्डिनेट यूज करके k की वैल्यू निकाल ली। अब वो k की वैल्यू यूज करके आप, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके खुद y और z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। इफ y एंड z कोऑर्डिनेट मैचेस विद दिस y एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट b, अगर वो मैच कर जाते हैं, सेम है, देन वी से दैट दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप ये देखिए, अगर मैंने इस में कैसे किया है, अगर इसमें k की वैल्यू निकाली है -3, फिर y कोऑर्डिनेट को यूज किया, उससे भी k की वैल्यू निकाली, वो -3 आई, फिर z कोऑर्डिनेट के लिए किया, उससे भी k की वैल्यू -3 आई। तो एक मेथड से दिस क्वेश्चन has been done by me and you done it yourself by using the other method। Now come to question number 5। In this question, you are given to find out the coordinates of the point which trisect the line segment which is obtained by joining these 2 points। So P point है आपके पास 4 to -6 and Q point है 10 and this is -16 and this is 6। And if A and B are the 2 points which are trisecting, means which are dividing the line segment PQ in 3 equal parts। So as these three parts are equal, PA, AB and BQ, so it means the ratio of these 3 parts will be 1:1:1। okay, if I talk about this point A, then A is dividing the whole line PQ, in which ratio 1 part is here and you can see the 2 parts are here। So this A is dividing PQ in the ratio 1:2 ratio। By using it, we will find this point x1, y1, z1। यहाँ पर m कितना है 1 and n कितना है, इन दोनों को मिला के 2। You can see we have used 1 and 2, and then 1 will be multiplied with this coordinates of this point Q, and this 2, the total this 2
will be multiplied with the coordinates of the point P to find out this x1, y1, z1. After this, you can see this point B is dividing this PQ in which ratio? You can see here two parts are here and this is 1. तो अब m की जगह पर 2 आएगा और n की जगह पर 1 आएगा. अब 2 will be multiplied with the coordinates of the point Q and 1 will be multiplied with the coordinates of the point P to find out this x1, y1, z1. You can do it yourself. Okay. Otherwise, as I told you earlier also in one of the questions, that if you talk about this AQ, then B is dividing AQ in the ratio 1:1. अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लेके करना चाहते हैं कि B is the midpoint of AQ है, तो आप कर सकते हैं. आप पहले A निकालिए 1:2 रेशियो लेकर और फिर उसके बाद B को 1:1 रेशियो लेकर AQ का मिड पॉइंट लेकर आप ऐसे भी कर सकते हैं. लेकिन उसमें क्या है कि एक चीज होता है कि अगर A रॉन्ग आया आपका कैलकुलेशन से कोई, तो B भी अल्टीमेटली रॉन्ग होगा. लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से निकालते हैं B को, ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि PQ को वो डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो 2:1, तो उसमें अगर A गलत भी होगा तब भी आपका B पॉइंट करेक्ट आएगा, उसके करेक्ट आने के चांसेस होंगे. तो इस वजह से एज यू विश आप कर सकते हैं, उसी तरीके से कर सकते हैं इसको. अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आ रहे हैं. मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या गिवन है कि 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं आपको, ठीक है, किसके? पैरेललोग्राम ABCD के, and you are to find out the fourth vertex. This type of question we have already done in your 10th class. उसमें इन आपके 2 coordinate system था, यहाँ 3 coordinate system है. Otherwise the method will remain same. क्या मेथड होगा कि by using this property of the parallelogram that the diagonals of the parallelogram bisect each other, आप सबसे पहले जो midpoint of AC होगा O, the same will be the midpoint of BD. BD का midpoint भी O ही होगा और AC का midpoint भी O ही होगा, क्योंकि in the parallelogram the diagonals bisect each other. Okay, at the point of इंटरसेक्शन. अब वही लिखा है, ठीक है. तो पॉइंट O जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AC भी है, वो मिड पॉइंट ऑफ BD भी है. आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है दोनों का और इक्वल रख देना है दोनों को, और उससे आपके पास जो आपका जो अननोन पॉइंट है वो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा. आप देखिए आपको इस तरीके से इसको करना है, ठीक है. इट्स वेरी इजी एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. ट्राई इट योरसेल्फ. And the students, in question number 2 of miscellaneous exercise, we are to find the length of the medians of the triangle with the vertices of these 3 vertices of the triangle have been given A, B and C. पहले तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है what is the median of a triangle. Actually median is a line segment. कौन सी line segment है which joins the vertex to the midpoint of opposite side. ये जो अगर मैं A vertex लेती हूँ तो इसकी opposite side क्या है? BC. तो इस अपोजिट साइड BC का जो मिड पॉइंट है उसको इस अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज मीडियन. So AD is median, BE is median, likewise CF is median, and we are to find out the lengths of these medians. अब देखिए लेंथ निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसके लिए 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है. अगर मुझे AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मुझे A पॉइंट तो गिवन है, D पॉइंट निकालना पड़ेगा. अब व्हाट इज द D पॉइंट? D पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो वही लिखा है D पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो हमने सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 प्लस z1 प्लस z2 अपॉन 2. ये आपने अप्लाई किया. इससे आपके पास क्या आ जाएगा? सेक्शन फॉर्मूला आ गया. सॉरी, ये आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला D आ गया, मिड पॉइंट D आ गया. अब AD जो है वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. AD हमने कैलकुलेट कैसे करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला से. तो D आ गया 3, 2, 0 और A आपके पास 0, 0, 6. 2 पॉइंट्स हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. पूरे का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, आपके पास AD आ जाएगा, ठीक है. ये AD आ गया. यह है आपके पास
ऐसे ही आप यहाँ पर इस ट्राइंगल में आप देखिए कि पॉइंट ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, वो आप फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बी की डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। ऐसे एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा, वो निकालेंगे। फिर उसके बाद सी एफ आप डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए इसमें कैसे किया गया है और आप इसको खुद कीजिए, ठीक है। ये देखिए ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, वो हमने फाइंड आउट किया। फिर लेंथ मीडियन जो है बीई डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला। फिर ऐसे ही आपने एफ पॉइंट जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, वो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाला। फिर लेंथ सी एफ जो मीडियन है, वो आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला। अब आज आप थर्ड क्वेश्चन जो है आपका इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का, उसमें गिवन है कि ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, सेंट्रोइड पी क्यू आर ट्राइंगल का ओरिजिन है, इसका मतलब 0 0 0 है। और उस ट्राइंगल पी क्यू आर के तीनों वर्टिसेस पी क्यू एंड आर यू हैव बीन गिवन। अब सेंट्रोइड की बात हो रही है। सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 होता है। अब सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हमें गिवन है, दैट इज द ओरिजिन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी 0 0 0 और ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब आपका ये x1 y1 z1 है, p q क्या x2 y2 z2 और r क्या x3 y3 z3। we have put the values of all these here in this formula and after this you can see this point is equal to this point। और दो पॉइंट्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, यानी x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा एंड आपका ये जो z कोऑर्डिनेट है वो z के इक्वल होना चाहिए। आपने इक्वेट किया तो इससे आपकी x y एंड z की वैल्यू आ जाती है। अब इसका कैलकुलेशन वर्क यू आर टू डू योरसेल्फ टू चेक वेदर इट्स करेक्ट व्हाटएवर आई हैव डन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस which are at a distance of 5√2 from the point P। क्या दिया है? एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके निकालने हैं और वो पॉइंट y एक्सिस का है, ठीक है। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लेकिन वो y एक्सिस पर जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से 5√2 है। वेरी इजी। ये पॉइंट मैंने ले लिया a which lies on y एक्सिस। तो क्योंकि दिस पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, तो दिस पॉइंट विल बी 0, y, 0। इसके x और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे और इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट P यानी 3 - 2 5 से इसकी डिस्टेंस 5√2 गिवन है, ठीक है। तो आपका PA इज इक्वल टू 5√2। PA आप कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट इट, ठीक है। सेक्शन सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ये देखिए दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो स्क्वायर लगेगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव साइन विल कम आउट कॉमन फ्रॉम बोथ एंड नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास ये आ रहा है, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इफ वी सॉल्व बाय splitting the middle term we are getting two values of y, these are 2 and -6, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट था रिक्वायर्ड पॉइंट वो क्या था? 0, y, 0। तो y की दो वैल्यूज आ गई हैं तो आपके दो पॉइंट 0, 2, 0 एंड 0, -6, 0, ये आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, in question number 5 of miscellaneous exercise is given a point R with the x coordinate 4 lies on the line segment joining these 2 points and you are to find out the coordinates of this point are very easy। आपको बोला गया है कि एक पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है जो कि ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है, इनको मिलाने से ज्वाइन करने से बनता है और उस line segment पर there is a point R whose x coordinate has been given, that is 4 units है वो। और आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये y और z कोऑर्डिनेट क्या है। अभी तो हमें यही नहीं पता है कि R इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पी क्यू को। तो हमने पहले तो सपोज किया R इज डिवाइडिंग पी क्यू इन द रेशियो q/1 और उसके बाद आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाया k मल्टीप्लाइड विद दिस
plus 1 multiplied with this, and we will equate it equal to 4y and z. ये जो सेक्शन फॉर्मूला होता है 4yz is equal to k into 8 plus 1 into 2 upon k plus 1, वैसे ही y कोऑर्डिनेट वैसे z कोऑर्डिनेट के लिए किया। अब हम कंपेयर करेंगे इस पॉइंट जो लेफ्ट साइड में पॉइंट है उसका x y z कोऑर्डिनेट हम कंपेयर करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन है तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल। अब यहाँ पर दिस इज नोन, y x कोऑर्डिनेट आपका 4 है तो ये दिस इज नोन, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे इसके साथ। जब हमने कंपेयर किया तो k की वैल्यू 1/2 आ गई। अब आप k की वैल्यू जो 1/2 आई है, आप y कोऑर्डिनेट और जो z कोऑर्डिनेट है, यू पुट द वैल्यू ऑफ k इन y एंड z कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसमें आप उसको रख के y और z की वैल्यू आप अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद आपका जो 6th क्वेश्चन है, दिस इज योर 6th क्वेश्चन। क्या है 6th क्वेश्चन? चलिए पहले तो इसको देखते हैं कि 6th क्वेश्चन आपको दिया है, इफ a and b these are the 2 points, find the equation of the set of the point p such that pa square plus pb square is equal to k square where k is a constant। बहुत आसान है, जब भी आपका ये आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगना ही है, हमें पता है p जो आपका है वो हमें नहीं पता, सेट ऑफ पॉइंट्स बोला है, p अननोन पॉइंट्स है x y z हमने ले लिए, उसकी डिस्टेंस पी ए यानी ए से इस p की डिस्टेंस a से और p की डिस्टेंस b से निकालनी है, क्योंकि पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर गिवन है। तो पी ए कैलकुलेट किया हमने, फिर उसका स्क्वायर किया, पी बी लिया और उसका स्क्वायर फाइंड आउट किया। अभी किया नहीं क्योंकि हमारा कुछ कैंसिल हो सकता है या कुछ देखते हैं, तो पी ए स्क्वायर लिया, पी बी स्क्वायर लिया, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। So all this I have written here, simplified all this. After simplification, after addition, आप यहाँ पर देखिए ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर आ गया, इधर y स्क्वायर है और इधर भी आपके पास y स्क्वायर है, फिर z स्क्वायर, सबको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है। तो उसने यही आपसे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में भी यही था कि आपको k की वैल्यू ये जो है ये if a and b with the set of the points respectively then find the equation of, इक्वेशन निकालनी थी और वो हमारी यहाँ पर इक्वेशन आ गई है, ठीक है जी। तो इट्स ऑल्सो डन।